إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. جی آج ہمارا لیسن رہے گا سجدہ سہو. جب ہم نے نماز کی فرائض صلاۃ اور ارکان صلاۃ پڑھے تھے تو اس میں ہم نے ایک بات کی تھی کہ اگر ارکان میں سے یعنی کسی بھی رکعت کے رکن میں سے کوئی رکن اگر رہ جائے مس ہو جائے چھوٹ جائے تو اس صورت میں وہ رکعت ریپیٹ کرنی ہوگی یعنی دوبارہ پڑھنی ہوگی. وہ رکعت آپ سے مس ہو جائے گی. رکن کے چھوٹ جانے سے رکعت چھوٹ جائے گی. وہ آپ کی ویلڈ رکعت کنسیڈر نہیں ہوگی. آپ کو اسے ریپیٹ کرنا ہوگا. لیکن جب ہم نے فرائض صلاۃ obligatory actions of صلاۃ پڑھے تھے تو اس میں ہم نے یہ نوٹ کیا تھا پوائنٹ کہ اگر فرائض صلاۃ میں سے کوئی بھی کام یا کوئی بھی ایکشن آپ کا مس ہو گیا تو اب آپ کو وہ رکعت دہرانی نہیں پڑے گی ریپیٹ نہیں کرنی پڑے گی بلکہ آپ کو اس کی کمپنسیشن کے لیے یعنی اس میں جو کمی رہ گئی ہے اس فرض ایکشن کے obligatory ایکشن کے چھوٹ جانے کی وجہ سے تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے آپ اپنی نماز کو جاری رکھیں گی یہاں تک کہ آپ آخری تشہد میں پہنچ کر اتحیات اور درود شریف اور پھر باقی مسنون دعائیں پڑھنے کے بعد جیسے ہی آپ سلام پھیرنے لگیں گے تو اس سے پہلے 2 سجدے آپ نے کرنے. ان 2 سجدوں کو سجدہ سہو کہتے ہیں, سجود السہو کہتے ہیں. سجدہ سہو کا مطلب ہوتا ہے ٹو فورگیٹ, بھول جانا. سہو کہتے ہیں بھول جانا, بھول کر کوئی کام کر لینا. تو 2 لفظ آتے ہیں جو اپوزٹ ہے, ایک ہوتا ہے سہون اور ایک ہوتا ہے قصدن. قصدن کا مطلب ہوتا ہے انٹینشنلی جان بوجھ کر کوئی کام کرنا, اور سہون کا مطلب ہے کوئی کام بھول چوک سے کر لینا یعنی آپ بھول گئے تھے. تو سجدہ سہو یا سجود سہو is performed whenever a mistake is made in any of the rak'ah of salat, then sajda sahw is done. When it will be done, if there is any mistake or any missing of obligatory action of salat, then sajda sahw is done. Why we have to do sajda sahw? ہمیں یہ کیوں کرنا ہے, سجدہ سہو کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس کی 2 وجوہات ہیں. نمبر 1 to remove doubt and gain tranquility, یعنی آپ اپنے شک کو دور کرنے کے لیے اور اپنے ذہن اور دل میں ایک سکون پانے کے لیے کہ میری نماز درست ہے. ورنہ کیا کرے گا شیطان, آپ کو بار بار ہر رکعت میں ہر وقت ہر لمحہ آپ کو یہی یاد کرائے گا کہ وہاں آپ سے غلطی ہو چکی ہے. تو فوراً اپنے ذہن میں یہ بات لیں کہ کیا وہ مسٹیک جو ہوئی ہے وہ آپ کے ارکان میں سے ہے یا فرائض میں سے ہے. بس اتنا آپ اپنے آپ کو جب سمجھا لیں گے تو پھر آپ کو فوراً سمجھ آ جائے گی کہ اب آپ کو کیا کرنا ہے, کیا سجدہ سہو کرنا ہے یا دوبارہ اس رکعت کو دہرانا ہے. تو سجدہ سہو اپنے دل سے اس شک کو مٹانے کے لیے اور دل کے سکون کے لیے. اور دوسری وجہ ٹو ڈسگریس دا شیطان
which puts waswas in the minds of musalli. जो नमाज पढ़ने वाला है उसके जहन और दिल में शैतान जो वसवसे डाल रहा है उन वसवसों से उसको दूर करना, ये इसका मकसद है. This shaitan is known as खंजब. खंजब खंजब भी बोलते हैं, खा नून जाल और बा. In English you can say KHNANZAB, खंजब और खंजब. ये वो शैतान है जो नमाज के दौरान नमाजियों को वसवसे में डाल देता है, उनके जहन और दिल को दूसरी बातों में मशगूल करके, दूसरी बातों में मसरूफ करके, बिजी करके नमाज से ध्यान हटा देता है और हम फिर बेध्यानी में कोई ना कोई मिस्टेक कर जाते हैं. तो शैतान को उसकी इस हरकत पर सजा देने के लिए, ये उसकी इंसल्ट है, क्योंकि शैतान ने एक सजदे से इनकार किया था ना, तो वो आज तक उस नाफरमानी की सजा भुगत रहा है. अल्लाह ताला की नजर में वो अल्लाह की रहमत से दूर हो गया, अल्लाह की तरफ से लानत ज़दा हो गया. तो जब हम 2 सजदे कर लेते हैं नमाज के एंड में सलाम फेरने से पहले, तो शैतान को एक तरह से हम डिसग्रेस करते हैं, उसकी इंसल्ट हो जाती है. फिर वो तड़प उठता है कि मैं तो एक सजदे का इनकार करके आज इस हाल को पहुँच गया हूँ कि गुमराह हो गया और अल्लाह ने मुझे अपनी रहमत से दूर कर दिया, और ये तो बंदा फिर से 2 सजदे करके अपनी नमाज को भी ठीक कर लिया और अल्लाह का मज़ीद फर्माबरदार बन गया. तो ये 2 वजूहात हैं कि आपके दिल में शक ना रहे, आपका दिल मुतमईन रहे कि कोई बात नहीं, अगर कोई गलती हो गई है तो उसकी तलाफ़ी हम 2 सजदे मज़ीद करेंगे, एक्स्ट्रा करेंगे तो वो उसको कंपनसेट कर जाएगी. और खंज़ब शैतान को सबक सिखाने के लिए और उसको ज़लील और रुस्वा करने के लिए. तो ये 2 वजूहात हैं सजदा सहव की, अपनी गलती को सुधारने के लिए. अव्वल तो हमें अपने ज़हन और दिल को मुतमईन करके तसल्ली के साथ नमाज के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए. और इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप नमाज में पढ़े जाने वाली आयतों और सूरतों का तर्जुमा जानते हो. अगर आपको ट्रांसलेशन आता हो तो आपका ध्यान आपकी उन अज़कार और दुआओं और किरात की तरफ ही रहेगा, जो कुछ भी आप अल्फ़ाज़ बोल रहे हैं, तो आपका ज़हन उसके साथ बंध जाएगा. लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि सूरह फ़ातिहा का तर्जुमा क्या है, या बाकी कोई भी सूरत आप पढ़ रहे हैं, या आपको रुकू की तस्बीह का मीनिंग नहीं आता, आपको सजदे की तस्बीह का मीनिंग नहीं आता, तो आपका ज़हन कहीं पर भी अटैच नहीं होगा, बल्कि वो इधर से उधर गर्दिश करता रहेगा. तो आपका ज़हन आपकी सोच कभी ना कभी इधर से उधर चली जाएगी. तो शैतान को मौका मिल जाएगा आपका ध्यान नमाज से हटाने के लिए. अब ये है कि सजदा सहव करने का तरीका क्या है? व्हाट इज़ द मेथड ऑफ परफॉर्मिंग सजदा सहव? नंबर 1, इट कंसिस्ट्स ऑफ 2 सजदा, 2 सुजूद. एक तो ये बात समझनी है कि इसमें 2 सजदे करने होते हैं. दूसरी बात, बिगिन विद रिसाइटिंग तकबीर. आपने सजदे सहव जब करना है सलाम फेरने से पहले, तो आपने अल्लाहु अकबर बोलना है और सजदे में चले जाना है. उसके बाद सजदे की जो तस्बीहात हैं वो पढ़नी है. गो फॉर सजदा, रिसाइट सजदा अज़कार, रिसाइट तकबीर, फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए फिर बैठ जाना है. सिट फॉर जलसा, तो एक सजदा करने के बाद जब आप बैठ जाते हैं तो उसको जलसा कहते हैं, सिटिंग पोजीशन. इन बिटवीन 2 सुजूद, फिर आपने अल्लाहु अकबर पढ़ना है, फिर आपने तकबीर कहनी है, दोबारा से अल्लाहु अकबर, गो फॉर सेकंड सजदा. एंड ड्यूरिंग सजदा रिसाइट अज़कार और दुआ, सुब्हान रब्बियल आला, देन रिसाइट तकबीर अगेन एंड सिट इन जलसा अगेन एंड डू तस्लीम, यानी उसके बाद सलाम फेर देना, राइट देन लेफ्ट साइड. तो क्या तरीकाकार होगा सजदा साहब करने का? आपने अत्तहियात में दुरूद शरीफ के बाद की जितनी दुआएं आप पढ़ना चाहते हैं, कुरानी दुआएं, मसनून दुआएं, वो आप पढ़ सकते हैं. और उसके बाद जब आप सलाम फेरने लगे तो उससे पहले अल्लाहु अकबर बोलें,
और सजदे में चले जाएं, सजदे की तस्बीहात पढ़ें, फिर बैठ जाएं। इस बैठने की पोजीशन को, बैठने की हालत को जलसा कहते हैं। फिर अल्लाह अकबर बोलें और फिर वापस दूसरे सजदे के लिए चले जाएं। फिर सजदे की तस्बीहात पढ़ने के बाद फिर अल्लाह अकबर कहें और फिर बैठ जाएं और फिर जब सिटिंग पोजीशन में आ जाएं, इसको भी जलसा बोलेंगे। तो फिर आप सलाम करते हुए पहले दाएं तरफ मुंह फेरेंगे और फिर बाएं तरफ। ये सलाम वही है जो आपने नमाज के लिए ऐसे भी करना था। सिर्फ डिफरेंस ये है कि अत्तहियात की मुकम्मल अज़कार और दुआएं पढ़ने के बाद और सलाम फेरने से पहले इन बिटवीन आपने 2 सजदे एक्स्ट्रा करने हैं। ये 2 सजदे सजदे सहव कहलाते हैं। अब आप इसका सीक्वेंस याद रखें, तरतीब याद रखें। अल्लाह अकबर यानी तकबीर, देन 2 सुजूद, देन सलाम, यानी अल्लाह अकबर फिर 2 सजदे फिर सलाम। अब 2 सजदा सहव करने के बाद फिर आपने तहियात से शुरू नहीं कर देना। अब यहाँ पे आपने तशहुद की कोई दुआ नहीं पढ़नी, बल्कि दोनों सजदे करने के बाद फौरन आपने सलाम फेर देना है। अब हम देखते हैं कि हमने सजदा करने के, सजदा सहव करने के तरीके कितने हैं। इसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई तरीके सुन्नत से साबित हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम सिर्फ कुछ का जिक्र करेंगे। अब देखते हैं कि कौन सा तरीका आपको ज्यादा इजी लगता है, ठीक है। सजदे सहव आप सलाम फेरने से पहले भी कर सकते हैं, और अगर मसलन आपने जल्दी में सलाम फेर दिया और सजदा सहव करना भी भूल गए, तो आप सलाम फेरने के बाद भी सजदा सहव कर सकते हैं। Number 1, before salutation, before salam. In this case, sequence will be after second tashahhud and durood Ibrahim, then sunnah duas, recite takbir, perform 2 sajda and then salam, salutation. ये वही तरीका है जो अभी हमने पहले देख लिया। In this type of salutation of salah will be coincide with the salutation of sajda sahab. यानी ऐसी सूरत में जब आप सलाम फेरने से पहले 2 सजदे करते हैं और फिर सलाम फेरते हैं, तो ये वही वाला सलाम है जो आपने ऑलरेडी नमाज के लिए फेरना था। तो एक ही सलाम में आपके दोनों काम हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन दूसरा तरीका, second point. नो, दिस इज पॉइंट 1, this is the type 1. This is the type 1 before salutation, and the second type is after salutation. Salutation means salam. In Sharia terminology, it is also called taslim. Before taslim and after taslim. ठीक है, मतलब वही है सलाम फेरना। दोबारा सुने पॉइंट नंबर 1। अगर हम सजदे सहव सलाम फेरने से पहले कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, आफ्टर सेकेंड तशहुद, दूसरे तशहुद के बाद जो आखिरी तशहुद है, उसमें आप बैठ गए, आपने अत्तहियात पढ़ी, फिर आपने दुरूद इब्राहिम पढ़ा, और फिर सुन्नत दुआएं जो भी आप पढ़ना चाह रहे हैं, कुरानी दुआएं भी आप तशहुद में रब्बना आतिना फी दुनिया हसना पढ़े, रब्बना ज़लमना अनफुसना पढ़े, कोई भी कुरानी दुआएं, कोई भी मसनून दुआएं आप पढ़िए। जब आप सलाम फेरना चाहते हो, दुआएं आपकी खत्म हो जाए, तो फिर आप क्या करेंगे, सलाम फेरने से पहले आपने तकबीर कहनी है, अल्लाह अकबर, और फिर 2 सजदे करने हैं। इन सजदों में और नमाज के 2 सजदों में, किसी भी रकात के 2 सजदों में कोई फर्क नहीं है। जब ये 2 सजदे हो जाएं और दूसरे सजदे के बाद आप बैठ जाएं, सिटिंग पोजीशन में आ जाएं, तो फिर आपने राइट और लेफ्ट सलाम फेरना है। इस टाइप में, इस तरीकाकार में जो नमाज का सलाम है ना, वही सलाम इस सजदा साहब का भी हो जाएगा। अब पॉइंट नंबर 1 क्लियर है सबको? अगर आप रिपीट करना चाहते हैं तो मैं एक दफा फिर बोल देती हूँ, बोलिए, किसी को रेपिटेशन की जरूरत है? क्लियर है? आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं। जी मैम।
क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। क्लियर है ना? जब आपको ना दूसरा वाला पॉइंट समझ में आएगा ना तो दोनों का डिफरेंस भी आपको समझ में आएगा। ओके, तो फिर नंबर ठीक। 1 भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब हम देखते हैं दूसरे तरीके में हम क्या करेंगे। दूसरा तरीका है आफ्टर सैल्यूटेशन और आफ्टर तस्लीम। सलाम फेरने के बाद हम सजदा साहब कैसे करेंगे? इन दिस केस द सीक्वेंस विल बी after second tashahhud and दुरूद इब्राहिम, then सुनन दुआस, give salutation यानी आपने सलाम भी फेर लिया, then recite तकबीर। सलाम फेरने के बाद आप अल्लाह अकबर यानी वहीं पे बैठे बैठे उसी कंडीशन में सेकंड तशहुद वाली ही आपने पोजीशन में बैठे रहना है। सलाम फेरने के बाद तकबीर अल्लाह अकबर कहना है, फिर परफॉर्म 2 सुजूद, फिर 2 सजदे करने हैं एंड गिव सैल्यूटेशन अगेन, और फिर आपने दूसरी मर्तबा फिर सलाम फेरना है राइट एंड लेफ्ट। इन दिस टाइम देयर विल बी 2 सैल्यूटेशंस, 2 तस्लीमात, फर्स्ट सैल्यूटेशन ऑफ सलात एंड सेकंड फॉर सजदा साहब। क्लियर है अब? इजी? Yes, ma'am. Any question? Anyone? No, ma'am. ओके, अच्छा लग रहा है ना आपको ये पॉइंट? जी मैम। गुड। अच्छा, एक दो फिर देख लेते हैं। अगर सलाम फेरने से पहले आपने सजदा साहब करना है तो आपने क्या करना है? आपने अत्तहियात पढ़नी है, दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, फिर उसके बाद जो दुआएं भी आपने मसनून या कुरानी दुआएं मांगनी हो आपने मांग लेनी है, और फिर एग्जैक्टली सलाम फेरने से पहले अल्लाह अकबर कहकर 2 सजदे करने हैं, और फिर जब दोबारा आप 2 सजदे करने के बाद आखिरी सिटिंग पोजीशन में आखिरी जलसा में बैठ जाएं तो फिर पहले राइट साइड पे सलाम फेरें और फिर लेफ्ट साइड पे सलाम फेरें। ठीक, तो आपने एक दफा ही सलाम फेरना। लेकिन दूसरे तरीके में, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोनों तरीके साबित हैं, यहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह भी करते थे, इस तरह भी कर लेते थे। ठीक है, तो सलाम फेरने के बाद अगर आप सजदा साहब करते हैं तो उस सूरत में आपने दूसरे तशहुद में जब बैठ जाना है, अत्तहियात, दुरूद इब्राहिम और सुनन मसनून और कुरानी दुआ पढ़ने के बाद आपने सलाम फेर लेना है दाएं और बाएं दोनों तरफ। फिर आपने तकबीर बोलनी है अल्लाह अकबर, 2 सजदे करने हैं और फिर दोबारा सलाम फेरना है राइट एंड लेफ्ट अगेन। ठीक हो गया? ये अगर आप सलाम के बाद कर रहे हो सजदा साहब तो फिर 2 तस्लीमात होंगी, यानी 2 मर्तबा सलाम होगा। पहला सलाम आपकी नमाज की फिनिशिंग का, नमाज के इख्तिताम का, और दूसरी बार आप सलाम फेरेंगे अपने सजदे साहब को मुकम्मल करने का। अब हम देखते हैं कि कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जब सजदे साहब सलाम से पहले किया जाता है, कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जब सजदे साहब सलाम फेरने के बाद किया जाता है। ठीक है, इतनी ज्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल बात यह है कि जब आपको अंदाजा हो जाए कि आपकी नमाज में कोई ऑब्लिगेटरी एक्शन रह गया है तो आप सजदा साहब कर सकते हैं। अगर सजदा साहब आप नमाज में सलाम फेरने से पहले करना भूल जाएं तो सलाम फेरने के बाद भी कर सकते हैं। इवन के अगर आपने सलाम फेर दिया, आप नमाज पढ़ने के बाद उठ गए, आपने अपने दोस्तों से घर वालों से कोई बातचीत भी कर ली, तब आपको कुछ काम करते हुए ख्याल आया कि मेरी नमाज में ये थोड़ी सी कुछ कमी रह गई थी, तो आप उस वक्त भी सजदा साहब कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा भी किया है, उनसे ऐसा करना भी साबित है। अब सलाम से पहले सजदा साहब करने की क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, क्या क्या वजूहात हो सकती हैं? When any act of rakah is missed from pillars or obligations of salah, for instance, first tashahhud is missed, instead of reciting tasbih of sajda, one recites tasbih of ruku in sajda, तो ऐसी सूरत में सलाम से पहले आप सजदे साहब कर लें। जी मैम। बाज़ औक़ात हम
सजदे में रुकू की तस्बीहात पढ़ लेते गलती से, या रुकू की तस्बीहात सजदे में पढ़ लेते, ये सजदे की रुकू में पढ़ लेते, ऐसा हो सकता है ना। कभी कभी हम फर्स्ट तशहुद में बैठना ही भूल जाते हैं, ऐसा भी हो सकता है ना, और हमारे साथ तो अक्सर होता है। जब हम 4 रकात वाली नमाज पढ़ते हैं तो दूसरी रकात के बाद आपने पहले तशहुद में बैठना है। तो पहले तशहुद में आप अत्तहियात पढ़ने के बाद अपनी शहादत की उंगली उठाने के बाद कलमे शहादत पढ़ने के बाद आप तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाते हैं। अगर आप चाहें तो दुरूद शरीफ भी पढ़कर फिर खड़े हो सकते हैं। दोनों सूरतों में सुन्नत का तरीका मौजूद है। ठीक है जी मैम। दूसरी कंडीशन, whenever there is an uncertainty of act performed or not, यानी आपको यकीन नहीं आ रहा, आप शक में पड़ गए कि मैंने सजदा किया है या नहीं किया। कभी कभी ये शक पड़ जाता है, पता नहीं मैंने 2 सजदे किए कि एक ही किया है, कभी कभी ऐसा भी होता है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस दिस इज सेकंड रका और थर्ड, कभी कभी ये भूल जाते हैं कि अभी हम थर्ड रकात में है या सेकंड पे, या थर्ड में है या फोर्थ में। ठीक है ना, तो तब भी हम सलाम फेरने से पहले अगर 2 सजदे कर लेते हैं तो वो शक वहम दूर हो जाता है और हमारी नमाज करेक्ट होगी। ठीक है, ठीक है। अगर तो अरकान में से कुछ छूट गया है ना, जैसे रकात में शक पड़ गया कि 3 किए 4, तो फिर 1 रकात आप एक्स्ट्रा पढ़ लें। ठीक है, और फिर 2 सजदे भी कर लें। गलती निकल गई और पूरी तरह आपका दिल मुतमईन हो जाएगा कि मेरी नमाज दुरुस्त हुई है, इसमें कोई कमी नहीं। क्लियर है ये बात? जी मैम। अब हम देखते हैं कि कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जब सलाम फेरने के बाद भी सजदा सहव किया जाता है। मैं फिर आपको एक बात बताऊंगी, इसमें आप शक ना करें, वहम ना करें, दोनों सूरतों में ठीक होगा। जब आपको सलाम से पहले याद आ जाए तो सजदा सहव कर लें, अगर आप भूल गए तो सलाम फेरने के बाद भी आप सजदा सहव कर सकते हैं। ठीक है, एक दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोहर की नमाज पढ़ाई और 2 रकात नमाज पढ़ के पहले तशहुद में ही सलाम फेर दिया और अपनी रूटीन में अपनी तस्बीहात पढ़ने लगे और नमाज खत्म करके बाहर भी निकल आए मस्जिद से। साहबा किराम ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जोहर की नमाज 2 रकात हो गई है? उन्होंने कहा नहीं, जोहर की नमाज तो 4 रकात है। ऐसी मगर आपने तो 2 पढ़ाई है। कहते अच्छा, मैंने तो 4 ही समझ के पढ़ाई है। तो वो गलती से पहले तशहुद में ही सलाम फेर गए। तो गलती अंबिया किराम से भी हो सकती है, राइट? जी मैम। कुछ समझ में आया? जी मैम। तो मतलब उन्होंने बातचीत भी कर ली, वो मस्जिद से निकल भी आए बाहर। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा वाकई, उन्होंने 2-3 लोगों से पूछा, सबने कहा हाँ ऐसा ही है, आपने 2 रकात पढ़ाई, पहले तशहुद में सलाम फेर दिया, हमने 4 रकात नहीं पढ़ाई। उन्होंने कहा अच्छा। तो फिर उन्होंने दोबारा अल्लाह अकबर कहा, 2 रकात नमाज दोबारा पढ़ी और फिर 2 सजदे किए सलाम से पहले। समझ में आया? तो उनके पीछे फिर तमाम सहाबा कराम ने भी सजदा साहब किए। ठीक हो गया? ठीक है, तो स्कॉलर्स का कहना है कि अगर 30 मिनट के अंदर अंदर आपको याद आ जाए या कोई बता दे कि आपने इतनी बड़ी मिस्टेक की, आपकी आधी नमाज ही जाया हो गई, तो आप 30 मिनट के अंदर अंदर अगर कर रहे हैं तो बाकी की जो नमाज आपकी छूट गई थी, यानी 4 में से 2, तो 2 रकात पढ़कर सजदा साहब कर ली। लेकिन अगर 30 मिनट ज्यादा हो गए, यानी आपको कई घंटों के बाद याद आया, तो फिर आप पूरी नमाज दोहरा लें। ठीक है ना, क्योंकि सेफ साइड यही है। ओके हो गया? ठीक है, जी मैम। अब हम देखते हैं कि किन सूरतों में, किन हालतों में सलाम फेरने के बाद भी सजदा साहब किया जा सकता है। When any act of rakah is added from pillars or obligations of the rakah, for instance, extra rakat or extra sajda or extra tashahhud performed, तो फिर आपने सलाम के बाद सजदा साहब करना है। ये एक उसूल बना लिया गया है, एक उसूल बताया गया कि अगर कोई चीज मिसिंग है ना, कोई एक्शन, वो ऑब्लिगेटरी एक्शन है या वो आपका रुकन मिसिंग है, तो रुकन मिस होने की सूरत में तो आपको वो रकात भी दोहरानी पड़ेगी ना, फिर सजदा साहब करना है। तो जो मिसिंग पार्ट है उसमें आप सजदा करेंगे, सजदा साहब करेंगे सलाम फेरने से पहले। लेकिन अगर कोई एडिशन हो गई है, ठीक है, यानी जैसे गलती से आपने 2 दफा रुकू कर लिया है, ठीक है,
یا ایکسٹرا رکعت پڑھ لی ہے تو پھر آپ سجدہ صاحب کریں گے سلام پھیرنے کے بعد. Second condition, when it was uncertain but later recalled and became certain, for instance, they didn't know which rakat. آپ بھول گئے کہ آپ دوسری رکعت میں بیٹھے یا تیسری میں تھے, بٹ ریکارڈ, لیکن پھر آپ کو یاد آ گیا, اینڈ ریئلائزڈ اٹس نمبر, تو پھر بھی آپ اس بھولنے کے چکر میں آپ سجدہ صاحب کر سکتے ہیں, تاکہ وہ جو تھوڑی دیر کے لیے آپ جو شک میں پڑے ہیں اس سے بھی آپ بچ سکیں. اچھا, اب کچھ نا ایکسپشنز بھی ہیں, جیسے if a person prays an extra rakat, says 3 instead of 2 rakat or 5 instead of 4, give salutations and end the salah. If later the person remembers, then in such a scenario the person should perform only sajda sahab. یعنی آپ نماز ختم کر چکے ہیں, آپ کو بعد میں یاد آیا کہ آپ نے تو 2 رکعت پڑھنی تھی, آپ 3 پڑھ گئے, یا 4 پڑھنی تھی اور 5 پڑھ گئے, تو پھر آپ بعد میں بھی سجدہ صاحب کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 کی بجائے 2 رکعتیں پڑھا گئے, تو انہوں نے سجدہ صاحب کیا, لیکن 2 رکعتیں انہوں نے بعد میں پھر ادا کی. ایک اور کنڈیشن ہے, 3 رکعت prayed, gave salutations, then remembered 1 rakat is missing, or 2 rakat prayed, gave salutation, then remembered niyat was not made, or you have made niyat for 4 rakat, مطلب 3 رکعت والی نماز تھی جیسے مغرب کے فرائض, اور آپ نے 4 رکعت کی نیت کر لی. ٹھیک ہے, in such cases no need to repeat salah. اس صورتحال میں آپ نے نماز کو دہرانا نہیں ہے. Now you have to perform missed rakat, جو آپ کی رکعت missing ہے اس کو پڑھیں, پھر 2 سجدے صاحب کی کر لیں after the salutation. But is applicable if a person remembers within a very short time period. If the person remembers after a long time, like after 1 hour, 2 hours, then the salah needs to be repeated. یہ ابھی پوائنٹ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا, اسکالرز نے ایک تھوڑا سا جو ہے نا وہ ٹائم اسپین سیٹ کیا ہے کہ اگر 30 منٹس کے اندر اندر آپ کو یاد آ جائے تو آپ مسنگ رکعت پڑھیں گے اور پھر سجدہ صاحب کریں گے. لیکن اگر آپ کو کئی گھنٹوں کے بعد یاد آیا یا مے بی دوسرے دن یاد آیا تو ہو جاتا ہے کبھی, کیونکہ یہ صورتحال جیسے جیسے ہماری ایج بڑھتی ہے نا ہم بہت ساری چیزیں بھولنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے. ہم بھی اپنے بچپن میں سنتے تھے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میرے ہماری دادا دادی جو ہے یا نانا نانی جو ہے وہ یہ بات ہی بھول جاتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی. کبھی کبھی نماز پڑھی ہوتی تھی, وہ کہتے تھے نہیں میں نے ابھی نماز نہیں پڑھی, اور کبھی کبھی انہوں نے نہیں پڑھی ہوتی تھی, وہ کہتے تھے میں نے پڑھ لی ہے. تو یعنی انسان اتنا ڈاؤٹ فل ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی میموری اتنی ویک ہو جاتی ہے کہ وہ یاد نہیں رکھ پاتے کہ میں نے وضو بھی کیا تھا کہ نہیں, پھر وہ وہم میں آ جاتے ہیں, پھر وہ شک میں آ جاتے ہیں. تو یہ کنڈیشن ہوتی ہے. ہم بھی اپنے چائلڈہڈ میں اپنے بچپن میں یہ سوچتے تھے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے, کوئی انسان یہ بھی بھول سکتا ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی تو پھر کیسے کوئی بھول سکتا ہے. لیکن اب ہم جیسے جیسے ایج وائز جو ہے نا وہ بڑے ہو رہے ہیں تو اب ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہم بھولنے لگے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہی آپ کا اولڈ ایج اسی کو تو کہتے ہیں کہ آپ کی عقل سلامت نہیں رہتی, بہت ساری صلاحیتیں آپ کی ویک ہونا لگتی ہیں, آپ کی آئی سائٹ ویک ہو جاتی ہے, ہیئرنگ کیپیبلٹی ویک ہو جاتی ہے, آپ کی کام کرنے کی کیپیبلٹی, ٹھیک ہے نا, کیپیسٹی آف ورک, آپ کی ہر ایک چیز میں ہر کیپیسٹی میں ڈاؤن فال آتا ہے. تو یہ ہے ہمارا اولڈ ایج میں یہ پرابلم ہم سب کے ساتھ آئیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زبان میں رکھے. ہاں جی, آپ بتائیے کوئی بات جو سمجھ میں نہ آئی ہو. آئی ہوپ ویری کلیئر. Yes, ma'am. Yes, ma'am. All Yes, clear. ma'am. Sujood as-sahw, it Ma'am. means prostrations of forgetfulness, یعنی بھول جانے کے 2 سجدے. ٹھیک ہے, اسلامک ٹرمینالوجی میں اس کو سجدہ سہو بولتے ہیں. اچھا, ہم لوگوں نے لاسٹ 2 ویک آپ لوگوں کو آخری تشہد کے بعد پڑھنے والی دعائیں اور نماز کے بعد کیا اذکار دیے تھے, میرا خیال نماز کے بعد کیا اذکار دیے تھے وہ آپ لوگوں کو سب کو یاد ہو گئے.
Yes, miss. कोई ऐसा हम में से है जिसको अभी तक नहीं याद हुए? जैसे सलाम फेरने के फौरन बाद हमने कौन सी दुआएं मांगनी है? ऊंची आवाज से, बुलंद आवाज से कहना अल्लाह अकबर, और फिर आहिस्ता आवाज में 3 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह, Astaghfirullah. अस्तगफिरुल्लाह। Astaghfirullah. आगे अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारक या ज़ल जलाली वल इकराम। ठीक है? ठीक। रब्बी अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। ठीक है? जी मिस। अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिका अन हरामिक व अगनिनी बिफदलिका अम्मन सिवाक। ठीक? ये वाली नहीं है। ये वाली नहीं है ना, तो कुछ आपकी दुआएं उसमें मिसिंग है, वो मैं आपको दोबारा फिर से भेजूंगी। ठीक है? ओके। तो फिर हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है मिस। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैत व ला मुअतिय लिमा मनअत ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ठीक है? जी मैम। वला यनफउ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। लास्ट पोर्शन इसका ये है। उसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला नअबुदु इल्ला इय्याहु। आगे किसको आती है? लहुन निअमतु व लहुल फज़्ल व लहुस सनाउल हसन ला इलाहा इल्लल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन वलौ करिहल काफिरून वलौ करिहल काफिरून। उसके बाद आयतुल कुर्सी पढ़नी है, और उसके बाद 33 टाइम्स सुभान अल्लाह, 33 टाइम्स अल्हम्दुलिल्लाह, 34 टाइम्स अल्लाह अकबर, और एक और हदीस में आता है 33 टाइम्स अल्लाह अकबर, और फिर 100 का नंबर कंप्लीट करने के लिए आपने ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर एक मरतबा फिर पढ़ना है। तो ये आपके नमाज के अस्कार हैं। कुछ और दुआएं भी हैं, वो मैं आपको फिर दोबारा भेजूंगी, लेकिन अभी आप लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है? अब आखिरी तशहुद में पढ़ी जाने वाली दुआएं भी, शेख मसनून दुआएं कौन कौन सी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई हैं, वो भी हम आपको भेजेंगे, लेकिन पहले हम ये कंप्लीट करेंगे नमाज के बाद के अज़कार इंशाअल्लाह। ठीक है? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, एनी पॉइंट टू बी डिस्कस्ड? You want to say anything? Yes, Alia, Ifra, Nabila, anyone? No question. Iman Amir, you have any question? Okay, our lesson is completed now. अम्मा आदिल, आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो बेटा। नो मैम। आदिल ओके। आखिरी दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।